Hello everyone, welcome to JV's IAS. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS with rank 34. So in this particular lecture, we would be covering energy resources, several conventional as well as non-conventional resources under economic geography. सो इसमें क्या कौन से कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिजर्व्स हैं, कौन कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया में क्या स्टेटस है रिजर्व्स का, है कि नहीं है, राइट. एंड बिसाइड्स दैट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंपोर्ट्स इन इंडिया एंड व्हाट आर सेवरल स्टेप्स दैट इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्शंस इन इंडिया. तो सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम रिसोर्सेज के बारे में. सो दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स hydrogen and carbon atoms. इसमें alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds and primarily alkanes are the most simplest one. So उससे मिलके बड़ा होता है पेट्रोल या फिर और जो भी बाकी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. सो इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट्स, राइट, एनिमल्स और एनीथिंग that has been decomposed over millions of years ago, right. It does not need कि अभी 100 साल में हो गया. It takes lot of time. जैसे कि हम कार्बोनीफेरस कोल की बात करते हैं, so कार्बोनीफेरस is around age की बात करें, so that is 350 million years ago. And if you talk about the Gondwana era, so Gondwana coal in India, that is around 250 million years ago. So कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को that gets buried in under the earth surface and when subjected to high temperatures and heat over a longer period of time under greater depths, then it gets converted into fossil fuels in the form of coal, in the form of petroleum and other reserves, right. So you know कि large quantities of dead organisms like zooplankton, these are basically the marine organisms, and algae underneath sedimentary rocks, when they are subjected to intense heat and pressure, they get converted into petroleum and other fossil fuels. So this basic idea one should have about petroleum or any other fossil fuel. Then what are the major constituents, किस चीज़ से बना होता है? So I told it is primarily consisting of hydrocarbons, that is exclusively hydrogen and carbon atoms, some alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds. So 90 to 95% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. बिसाइड्स दैट 5 to 10% में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज, राइट. सो दिस वी शुड नो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि कहाँ पर कैसी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑयल. सो देर आर सर्टन प्री रिक्विजिट कंडीशंस. फर्स्टली दैट देर शुड बी सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स का होना ज़रूरी है. Besides that, porosity हो, permeability हो, and porosity permeability का मतलब ये है कि there should be pore spaces होंगे which can contain oil within them. So porosity is necessary, permeability is necessary because connectedness of pores with each other, उससे क्या होगा कि we can extract such kind of oil because permeability, porosity and ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो sedimentary rocks में ज़्यादा होती हैं. Sedimentary rocks, they are good in both porosity and permeability. So these kind of rocks or formations can have more probability of occurrence of petroleum reserves. और इंडिया में कहाँ मिलता है या बेसिकली ब्रॉडली वैसे भी कहाँ मिलता है? It is found in the anticlines or fault traps. Now what is anticline? If you talk about, आपको पता हो अगर folded topographies क्या होती है, if you know this folded topography, so folded topography have folds like this. So this particular crest part is called the anticline and this particular part, the trough part, is called the syncline in a fold, right. So oil gets deposited in the anticline, not in the syncline. सिंक्लाइन में पानी इकट्ठा हो जाता है, ऑयल जो है दैट इज मोर लाइटर देन वाटर, सो इट गेट्स तो वो पानी के ऊपर एंटीक्लाइंस में डिपॉजिट होता है. सो या तो एंटीक्लाइंस में होगा इन द फोल्डेड टोपोग्राफी, या फिर अगर फॉल्टेड टोपोग्राफी, इफ यू नो कि ये एक ब्लॉक है इसमें फॉल्ट आ गया, सो वन ब्लॉक इज हियर एंड अनदर ब्लॉक इज हियर, सो यहाँ पर कहीं पर भी गैप्स होते हैं तो वहाँ फॉल्टेड टोपोग्राफी में भी अलोंग द फॉल्ट्स
जो है हमको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है दे कैन गेट बरीड अलोंग दिस एंड देन ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स पीरियड दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम और एनी अदर फ्यूल. सो फॉल्ट ट्रैप्स के अलोंग हो सकते हैं, एंटी क्लाइंस के अलावा हो सकते हैं, उसके अलावा सॉल्ट डोम्स, इसके अलोंग भी हमें पेट्रोलियम वगैरह मिलता है. अब सॉल्ट डोम्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली thick bed, these are thick bed of evaporite minerals. Salt domes की बात कर रहे हैं. These are thick bed of evaporite minerals which they intrude vertically into the surrounding rocks. So basically यहाँ पे ऐसा कुछ होता है. Let me just rub it and draw. So salt domes, they basically are some जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स होता है, वहाँ पर भी हमको सॉल्ट डोम्स, बेसिकली सॉल्ट जो है दे इवेपोराइट, उसमें से मिनरल्स जो है वो इवेपोराइट हो जाते हैं. देन अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस देयर इज प्लास्टिक फ्लो ऑफ दीज सॉल्ट इवेपोराइट मिनरल्स एंड देन दे फॉर्म सच काइंड ऑफ डोम्ड टोपोग्राफी इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. सो उसकी वजह से क्या होता है कि एंड दे मूव वर्टिकली. सो ये जो भी यहाँ पे सराउंडिंग रॉक स्ट्रेटा है उसको डिसरप्ट करते हैं एंड यहाँ पे कुछ फोल्डेड टोपोग्राफी यहाँ पे भी बन जाती है बिकॉज ऑफ इंट्रूजन ऑफ दिस सॉल्ट डोम. सो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ यहाँ पे डोम्ड टोपोग्राफी बनती है अगर सरफेस पे हम देखें तो, एंड उसकी वजह से भी यहाँ पर जो भी डिप्रेशंस वगैरह बनते हैं और वहाँ पर जो भी बरी होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic substances over a period of time that also gets converted into petroleum. So salt dome topography, वहाँ पर भी हमको ये चीज़ पेट्रोलियम वगैरह मिलता है. अगर हम इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि इंडिया में पेट्रोल रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं, सो दे आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंट्स. सो एंटीक्लाइंट्स के बारे में आई टोल्ड यू व्हाई पेट्रोलियम रिजर्व्स दे आर फाउंड इन द एंटीक्लाइंट्स, बिकॉज एंटीक्लाइंट्स सिनक्लाइंट्स में वाटर डिपॉजिट हो जाता है एंड एज ऑयल इज लाइटर देन वाटर सो इट गेट्स कलेक्टेड इनटू द एंटीक्लाइंट्स. एंड एंटीक्लाइंट्स एंड सिनक्लाइंट्स दीज आर एसोसिएटेड विद द फोल्डेड टोपोग्राफी. एंड फोल्डेड टोपोग्राफी हमें कहाँ देखने को मिलती है? व्हेन वी फाइंड कि कॉन्टिनेंट प्लेट्स का कोलिजन हो रहा है. सो इन दैट केस हमें CC कोलिजन की वजह से क्या होता है कि ओरोजेनेसिस हमें देखने को मिलती है एंड इन दैट केस फोल्ड माउंटेन्स दे डेवलप, राइट? फोल्ड माउंटेन्स दे डेवलप एंड वी नो हिमालयस दे आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. सो इस तरीके से एंटीक्लाइंट्स से एसोसिएटेड होते हैं या फॉल्ट ट्रैप्स के जहाँ पे फॉल्टिंग होती है, ब्रेकिंग होती है. सो हिमालयस जब बने तो वहाँ पे हमें फॉल्ट ट्रैप्स भी देखने को मिलते हैं इन द सेडिमेंट्री रॉक्स formation of the tertiary times. Now tertiary time was the time when Himalayas were being formed. So Himalayas were being formed, so you can relate now कि tertiary time क्यों है, Himalayas बन रहे थे. So इस time पे there were changes in the topography, right? Elevation, mountains were being formed and there were areas where organic compounds might have been buried inside the earth surface and then over a period of time they got converted into oil reserves, right? So talking about India, India presently has 26 sedimentary basins covering an area of around 3.14 million square kilometers, right? So this you should know. अब ज़्यादातर हमें ऑयल रिजर्व्स पाने के चांसेस कौन से एरियाज में ज़्यादा होते हैं? ब्रॉडली अगर हम देखें जो भी फॉरेस्ट रिजर्व रहा होगा, राइट? फॉरेस्ट रिजर्व्स हो गए, पूरे फॉरेस्ट इफ दे बरीड आउट, राइट? सो वो एरियाज में हमें रिजर्व्स ज़्यादा पाने के चांसेस हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट एस्चुरीज, डेल्टा, these are the regions जहाँ पे vegetation, जहाँ पे biodiversity is very huge. So if due to any reason that particular area got submerged, right, that particular area got buried, so in that case there also we find huge chances of finding oil reserves. So तभी हम बात करें गल्फ रीजन्स की, गल्फ कंट्रीज, गल्फ रीजन, डेल्टा रीजन, वहाँ पे हमको पेट्रोल रिजर्व्स वगैरह देखने को और मिलते हैं. Then talking about Indian sedimentary basins, Indian sedimentary basins को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कि वहाँ पर कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल रिसोर्सेज मिलने के. सो 4 कैटेगरीज हैं जिसमें कि कैटेगरी 1 आता है जिसमें कि 7 बेसिन्स आते हैं, राइट? एंड कैटेगरी 1 में कौन कौन से बेसिन्स हैं? यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? यहाँ से हम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो कैम्बे बेसिन यानी कि गल्फ ऑफ खंबाट वाला बेसिन गुजरात कोस्ट पे,
then Assam shelf, Mumbai offshore, Krishna Godavari Kaveri region, right? Then Assam Arakan fold mountain belt, this was formed during the tertiary period, we know. And then Rajasthan. Okay, then talking about the category 2. कैटेगरी 2 में 3 बेसिन्स आते हैं, एंड यहाँ पर हमें पता है कि रिजर्व्स है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, बट कोई भी कमर्शियल प्रोडक्शन अभी हमने यहाँ पे शुरू नहीं किया है. सो दैट पर्टिकुलर एरियाज में कौन कौन से आते हैं? कच्छ वाला रीजन आता है, महानदी आता है, महानदी रीजन, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, ये 3 बेसिन्स आते हैं. देन कैटेगरी 3 में हमारे पास 6 बेसिन्स हैं. उन 6 बेसिन्स में बेसिकली हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसा हमें प्रॉस्पेक्ट्स हमको लगता है कि यहाँ पे होने चाहिए, बट अभी भी ये प्रॉस्पेक्ट्स ही हैं, राइट. सो हिमालयन फोरलैंड हो गया, गंगा विंध्यान रीजन हो गया, सौराष्ट्र. गंगा विंध्यान रीजन में हमें इसलिए क्योंकि these areas saw marine transgression during the tertiary period. So marine transgression होगा तो obviously organic compounds, जो भी organic materials हैं, minerals हैं, organic resources है, that must have got submerged. So इसलिए भी chances है कि यहाँ पे मिल सकता है. Then Saurashtra region, again possibility of there was marine transgression in of this particular area also when the Indian plate was moving towards the Eurasian plate. So that time यहाँ पर था. Then Kerala, Konkan, Lakshadweep and Bengal, right? These come under this particular category 3. Then category 4 में 10 बेसिन जाते हैं. यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बेस्ड ऑन ऐसी कंडीशंस बाकी जगह वर्ल्ड में जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ऑयल मिलता है. सो उस एनालॉजी के बेसिस पे वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी मिलेगा. सो कारेवाज इन हिमालयस, देन स्पीति जस्कार दैट इज इन हिमालयस, राइट, हिमाचल प्रदेश. देन सतपुरा in south, Riva Damodar Valley region, Narmada, these are basically the fault lines. Narmada fault valley है, Damodar fault valley है, right. Then Bhima, Kaladgi, Kadappa region. After that Pranhita, Godavari and in Chhattisgarh. So Bastar in Chhattisgarh. Then we have this deep water resources also. Deep water resources में east and west coast, जो कि हमारा 400 मीटर फ्रॉम वाटर डेप्थ, 400 मीटर वाटर डेप्थ पे भी जो है ये डीप वाटर रिसोर्सेज. Then you can see this on the map, all the 6 category basins. This lighter blue one is the deep water areas within EEZ. This is export, this EEZ zone, exclusive economic zone. This is zone 6. Then we talk about the category 1. This orange one is the category 1, जहाँ पे हम अभी commercial production कर रहे हैं. category 2 जो ये कच्छ region है and this particular region, यहाँ पर हम commercial production नहीं कर रहे, but we know there are reserves. Then category 3 basins, these are yellow ones are the category 3 basins. Then category 4 basin, the green one, and after that we have this. So now talking about offshore oil production in India. Offshore oil production India में कहाँ कहाँ होता है? ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन हो गया, यहाँ पे मिलता है. आफ्टर दैट कावेरी डेल्टा रीजन में हम प्रोडक्शन करते हैं. वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई हाई, राइट, वहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं. एंड देन आलिया बेथ विच इज कैम्बे रीजन में आलिया बेथ आइलैंड, वहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस वी शुड नो. कृष्णा गोदावरी में कौन सी फील्ड्स हैं? रावा फील्ड्स आर देयर, offshore fields. Then Kaveri region में there is Narimanam oil fields that are there. Then after that talking about onshore oil production. onshore की बात करें तो असम region में जो दिग्पोई oil fields हैं that are considered to be the oldest oil fields in India. So ये हम onshore production यहाँ से करते हैं. उसके बाद नहर कटिया field that is also in the north eastern region. Then talking about the Gujarat fields में अंकलेश्वर, खंभाट, these are the areas जहाँ से हम production करते हैं. After that राजस्थान oil fields, these are considered to be the largest onshore oil producing state. So राजस्थान जो है वो largest onshore oil producing state है, और यहाँ पे मंगला oil fields are there which are famous. Other than that Saraswati and Rajeshwari oil fields are there in this particular state. And अगर हम बात करें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, इफ यू नो समवेयर इन मैप दिस पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया, सो दिस पर्टिकुलर एरिया बाड़मेर रीजन दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इनलैंड ऑयल डिस्कवरी
सो दिस यू शुड नो, राइट। एंड अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ देयर लोकेशनल एस्पेक्ट्स डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, राइट, इनएक्सेसिबिलिटी है, उसकी वजह से यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी चैलेंजिंग होता है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। देन इफ वी टॉक अबाउट स्टेट वाइज प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट का होता है? सो क्रूड ऑयल के टर्म्स में सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज राजस्थान जो है वो उसका प्रोडक्शन है, सेकेंड नंबर पे इट्स गुजरात, थर्ड नंबर पे इट्स आसाम। सो इफ़ यू टॉक इन दिस टर्म्स, आपको मैप पता है तो एक हो गया हमारा, मान लेते हैं ये वाला रीजन राजस्थान, देन याद करने के लिए इसके नीचे उतरेंगे तो गुजरात, एंड देन इधर हम आई मीन दिस पर्टिकुलर रीजन इज राजस्थान, एंड देन इधर गुजरात, एंड देन फिर हम यहाँ से सीधा ईस्ट चले जाएंगे, सो ईस्ट में आसाम। दीज आर द एरियाज, सो राजस्थान, गुजरात एंड आसाम। देन टॉकिंग अबाउट द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हमको आसाम में मिलते हैं। सो अब हम यहाँ से उल्टा चलेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ, सो RGA, राजस्थान, गुजरात, आसाम। अब हम उल्टा चलेंगे, आसाम से वापस आएंगे, सो आसाम, गुजरात, राजस्थान, आसाम उसी रास्ते से, सो आसाम आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा। सो ये है नेचुरल गैस के लिए, दिस इज फॉर नेचुरल गैस की सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? आसाम है, देन गुजरात है, देन राजस्थान है। एंड अगर हम ऑफशोर की, अगर इंडिया में बात करें कि प्रोडक्शन कहाँ से आता है, ऑफशोर प्रोडक्शन ज़्यादा है या ऑनशोर? सो इंडिया में ऑफशोर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, जो हम सी बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, देन द ऑनशोर प्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया इम्पोर्ट कहाँ से करता है, फ्रॉम व्हाट ऑल कंट्रीज इंडिया इम्पोर्ट्स द ऑयल। सो टॉकिंग अबाउट कि इंडिया को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत भी इसीलिए क्यों कि अगर हम बात करें कि कितना परसेंट ऑफ रिजर्व्स इंडिया के पास है, हम इतना भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, दो हम जानते कि ऑनशोर प्रोडक्शन जो है या फिर ऑफशोर प्रोडक्शन ऑनशोर प्रोडक्शन से ज़्यादा है, बट स्टिल जो रिजर्व्स है, अगर टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व्स की बात करें, इंडिया के पास उसका खाली 0.5% ऑफ वर्ल्ड जो है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज है। And you know the population of our country, that is so huge, so humongous, second largest populated country in the world. So because of that our demand is increasing. We are also being industrialized, so new industries are coming, consumptions are increasing, power demands are increasing. So as a result our demand for petroleum, oil and natural gas resources is increasing. So as a result India has to import, and this is a major chunk of जो हम spending करते हैं, current account deficit का एक important major chunk जो है हमारा oil imports की वजह से है, and that is why government is focusing on the non-conventional resources, non-conventional and renewable resources, so that we can cut down our current account deficits, right, because of by reducing the oil imports. So अब बात करें कि कौन सी कंट्रीज से इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, सो फर्स्ट इज इराक, यहाँ से हम 21% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, देन सऊदी अरेबिया इज द सेकेंड, थर्ड इज ईरान। सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, ISI, दो नॉट एग्जैक्टली ISI बट निमोनिक है ISI। तो इराक पहला है, देन सऊदी, देन ईरान, डोंट अब आई है तो इराक और ईरान में ध्यान रखना है, पहले नंबर पे इराक है, देन सऊदी है, देन ईरान है, फिर 4, 5, 6 यू कैन अफोर्ड टू नॉट रिमेंबर, वेनेजुला, नाइजीरिया, UAE। देन टॉकिंग अबाउट इंडिया में रिफाइनरीज कहाँ है, सो रिफाइनरीज, वन रिफाइनरी इज इन भटिंडा, देन पानीपत हरियाणा में रिफाइनरी है, मथुरा यूपी में रिफाइनरीज आर देयर, राइट। बिसाइड्स दैट देयर आर रिफाइनरीज इन कोयाली, मुंबई में जो है ट्रॉम्बे रीजन जो है, ट्रॉम्बे दैट हैज रिफाइनरीज, एंड ट्रॉम्बे के बारे में यू शुड नो कि यहाँ पे बार्क जो है दैट इज लोकेटेड, बार्क इज व्हाट, इट्स अ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954। सो इसके बारे में आप यू शुड नो कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं, एंड इट डायरेक्टली कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर, सो जो भी इनके एक्टिविटीज रहते हैं। सो दिस इज व्हाट अ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी लोकेटेड एट ट्रॉम्बे, और यहाँ पर रिफाइनरीज भी हैं, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, राइट। सो इस तरीके से यू ट्राई एंड रिलेट थिंग्स, अगर आप मैप में कोई चीज़ पढ़ते हो तो हाँ रिलेट करो चार चीज़ों को, अच्छा यहाँ पे ये है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये भी था,
सो ऑल ऑफ दैट, देन यू नो कि अब हमने यहाँ पे रिलेट किया तो कैसे किया, ट्रॉम्बे है, यहाँ पे रिफाइनरी है, देन यहाँ पे बार्क का ऑफिस है, बार्क है तो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता है, वो किसके अंडर में, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। तो हम कहाँ से कहाँ चले गए। सो इस तरीके से व्हेन यू सी मैप, ट्राई टू कीप रिमेंबरिंग थिंग्स लाइक दैट, सो दैट मीन्स आपका मैप बहुत बोरिंग नहीं होगा, राइट। तो उसके अलावा और कहाँ का रिफाइनरीज है, सो मैंगलोर में है, कोची में रिफाइनरीज आर देयर, देन पाराद्वीप, हल्दिया, बरौनी में रिफाइनरीज हैं, देन इधर दिग्बोई रिफाइनरीज आर देयर, बुंगई गांव रिफाइनरीज आर देयर, देन इधर नुमालीगांव रिफाइनरीज आर देयर, Numaligarh, it's not Numaligaon, it's Numaligarh, and then Guwahati. These are several refineries in India. And if you also talk about oil fields, world oil fields की बात करें, so talking about these are the pipelines in India. So before seeing world oil fields, let's talk about pipelines. So this is the map showing existing pipelines. The blue ones are the existing ones and dotted red ones, these are the under construction pipelines. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाहेज, सूरत से कैसे ईस्टर्न साइड में जगदीशपुर, बरेली एंड दिस पानीपत, पानीपत, दिल्ली, दादरी रीजन, राइट, ऑफ NCR, these are connected through pipelines. बाकी तो इस रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा पाइपलाइंस की डेंसिटी हमको देखने को मिल रही है। बाकी एरियाज में जो है, जैसे आप ईस्टर्न पार्ट में देख लो, पाइपलाइन कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत आप इधर भी जाओगे तो पाइपलाइन कनेक्टिविटी अभी आ रही है नहीं, बट दिस पर्टिकुलर पार्ट, गुजरात से लेके जो यूपी का पार्ट है, MP का पार्ट है, दैट इज़ वेल कनेक्टेड थ्रू पाइपलाइन। दो सेकेंडरी पाइपलाइन जो है वो फीडर पाइपलाइन वो इतनी ज़्यादा नहीं हमको हैं, बट ब्रॉडली दिस पार्ट हैज़ मेजर कनेक्टिविटी थ्रू पाइपलाइंस। सो उसके बाद वी शुड नो कि यहाँ पे एक पाइपलाइन है HBJ pipeline. These are very famous. Haldia, Bijapur and Jagdishpur. Haldia is in Gujarat, Bijapur is in MP, right, and Jagdishpur is in UP, Amethi के आसपास. So this is considered to be the largest underground pipeline. और उसके अलावा भी एक पाइपलाइन है जामनगर से, which is in Gujarat. जामनगर से लोनी is in Ghaziabad. This is considered to be the world's longest LPG pipeline. So these two facts you can remember at least. बाकी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने का फ़ायदा क्या है कि दे आर लाइक मोर, दे कैन, टेरेन जो है वो इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, इट कैन बी लेड अक्रॉस एनी टेरेन. सो अंडर वाटर भी हम ऐसी टेरेन को जो है वो बना सकते हैं, पाइपलाइंस डाल सकते हैं. देन उसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड्स के लिए, इस तरीके की फ्लूइड्स के लिए आइडियल होती है पाइपलाइन. तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन, राइट. उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होती है, कम आसानी से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं इसको. बट देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस ऑल्सो. पाइपलाइंस के डिसएडवांटेजेस ये हैं, एक तो मेजर चीज़ है कि आपने एक जगह से दो जगह के बीच में पाइपलाइन डाल दी, सो वो फिक्स्ड पॉइंट्स है, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते. एक वॉल्यूम जो है आप बाद में कैपेसिटी पाइपलाइन की चेंज नहीं कर सकते, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक. देन सिक्योरिटी इंश्योर करना पाइपलाइन सेटअप का, क्योंकि इतने लंबे उसमें डाले जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. और लीकेज को डिटेक्ट करना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट इन पाइपलाइंस. So these are several drawbacks, आपको पता होने चाहिए. Now talking about the world distribution of petroleum. So largest reserves की बात करें, so largest reserves वेनेजुएला के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है, कनाडा, ईरान, कुवैत, UAE, रशिया, लीबिया, USA 90 नंबर पे आता है. So आपको मेजरली टॉप 3 याद होने चाहिए. वन इज़ इन वेनेजुएला विच इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री. देन सऊदी अरेबिया, so we know it's Middle East Asian country. Then Canada is in North America. So these top 3 तो you must remember, right. उसके अलावा जो भी है ईरान, कुवैत, UAE, these are all Middle Eastern countries. लीबिया, then रशिया तो आपका एशिया का पार्ट है. Then USA नॉर्थ अमेरिका. So these broader world distribution आपको पता होना चाहिए. रशिया में अगर हम बात करें तो रशिया में फार ईस्ट रीजन जो है,
फार ईस्ट रीजन जो मंचूरिया चाइना के ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पे कामचटका पेनिनसुला है, कामचटका पेनिनसुला, वहाँ पर हमको ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। देन टॉकिंग अबाउट अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल फील्ड की बात करें तो साफानिया whatever you pronounce it, these are the in Saudi Arabia, these are the largest, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। उसके अलावा अल बुरखान ऑयल फील्ड्स, these are considered to be the second largest oil fields and ये हमें ईरान में मिलती है। सो ये आपको फैक्चुअल डिटेल्स थोड़ी बहुत पता हो तो बेहतर है। देन अगर हम नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में दिस पर्टिकुलर अलास्का रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर हमको ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। देन गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन में ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे दिस शील्ड रीजन, न्यू फाउंडलैंड के आसपास का जो शील्ड एरिया है, यहाँ पर हमको ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। देन उसके अलावा कनाडा में अथाबास्का बेसिन है, दैट हैज़ पर्टिकुलरली ऑयल रिजर्व्स, सो दिस यू शुड नो। उसके अलावा टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी होगा, राइट। यूएसए जो है 90 नंबर पे आता है, हमने देखा रिजर्व्स के मामलों में, बट स्टिल यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटी है भाई के पास में, टेक्नोलॉजी है, राइट, इन्वेस्टमेंट्स है, फिजिकल कैपेसिटी है, राइट। सो इसलिए लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, प्लस रिजर्व्स भी मिलते हैं। देन सऊदी अरेबिया इज़ द सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर, थर्ड नंबर पे रशिया है, फोर्थ पे कनाडा है, फिफ्थ पे चाइना है, राइट। सो दिस यू शुड नो। बिसाइड्स दैट एक OPEC is a world organization of petroleum exporting countries. This was found in 1960s, ताकि जो भी ये लोग अपना एक कार्टेलाइजेशन बना करके ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा बहुत डिसाइड कर सके, राइट। सो व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1960s, और इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर, जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, one is Venezuela, then Kuwait, then Iran, Iraq and Saudi Arabia. These are the founding members and presently इसमें कुछ 14 members हैं, around 14 members are there in and recently states like Qatar is not a part of it, it left it. Then Indonesia was also once a part of OPEC but now it is not. So this you should know. Then these are the reserves you can see. This is the northern Alaska region, then Gulf of Mexico region, इधर Newfoundland region में भी ऑयल मिलता है। then Orinoco Belt of Venezuela, and Venezuela में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स मिलते हैं। then Barents Sea, ये नॉर्थ सी के ऊपर है, राइट, यहाँ पर हम ऑयल जो है प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। then नॉर्थ सी रीजन, नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन में लीबिया, तुनीसिया, ये सारे जो कंट्रीज आते हैं यहाँ पर मिलता है। देन नाइजर डेल्टा रीजन, यहाँ पे रिजर्व्स मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा रीजन, एस्चुरी रीजन, यहाँ पे रिजर्व्स क्यों ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मरीन ट्रांसग्रेशन और ये सारी चीज़ें। देन वेजिटेशन बहुत डेंस मिलता है, फिर अगर वो बरी होता है, सबमर्ज होता है, देन देर आर ह्यूज चांसेस कि वहाँ पे रिजर्व्स मिले। सो नाइजर डेल्टा इज़ वन एग्जाम्पल। देन मिडिल ईस्ट में मिलता है, वी नो। देन इधर येनेसी एंड रीजन, यहाँ पर मिलता है कामचटका पेनिनसुला, इधर मिलता है रशिया में, फार ईस्ट रीजन में। सो दीज आर सेवरल वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स दैट यू शुड नो। उसके बाद क्रूड प्राइसिंग की बात करें, सो क्रूड प्राइसिंग इज बेसिकली स्पॉट प्राइस होता है एक बैरल का बेस्ड ऑन बेंचमार्क क्रूड ऑयल। सो बेंचमार्क क्रूड ऑयल क्या होता है कि इट्स अ रेफरेंस प्राइस, एक हम रेफरेंस प्राइस मान के चलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर क्या प्राइसिंग है हम उसको रेफरेंस प्राइस मान लेते हैं। जैसे कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, सो ये अमेरिकन रीजन में क्या प्राइसेस है उसको हमने बेसिस मान लिया और उसके बेसिस पे हम स्पॉट प्राइस वगैरह देखते हैं। सो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, सो यहाँ पर जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, दैट इज़ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसके प्राइसेस के बेसिस पे होता है। कनाडा के लिए अलग कनाडा का बेंचमार्क प्राइस है विच इज़ कैनेडियन सेलेक्ट, वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट। देन OPEC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, उनका अलग एक रेफरेंस बास्केट है। देन ब्रेंट क्रूड इज़ बेसिकली ये हमारा नॉर्वेजियन रीजन जो है यहाँ पर, दिस ब्रेंट सी, यहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है यूरोप में लार्जली जो ऑयल होता है उसका बेंचमार्क प्राइस ब्रेंट क्रूड होता है। देन दुबई क्रूड, दीज आर सेवरल बेंचमार्क प्राइसेस, राइट। और अलग अलग डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों होती है, अब इसका प्राइसिंग का अलग होगा, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का अलग होगा, ब्रेंट क्रूड का अलग होगा, और उसको बेंचमार्क मान के लोग प्राइसेस डिसाइड करते हैं।
सो डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों होती है? अब डिफरेंशियल प्राइसिंग का रीज़न है अलग अलग ग्रेड ऑफ ऑयल, अलग अलग क्वालिटी ऑफ ऑयल, एंड क्वालिटी ऑफ ऑयल विल डिपेंड अपॉन क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो दिखाएगी कि कैसा क्वालिटी ऑफ ऑयल है, देन कितना सल्फर कंटेंट है। जैसे कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और कंपेयर करें हम इसका वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट का, सो वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट इज कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव compared to the West Texas Intermediate, because West Texas Intermediate उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, सल्फर कंटेंट कम होता है, इसकी वजह से दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर बेटर, राइट। देन ऑल्सो द लोकेशन, कितना टाइडल वाटर से, कितना रिफाइनरी से जहाँ पे भी एक्सप्लोर करा जा रहा है ऑयल, वो प्रॉक्सिमिटी में है। And if you talk about heavier, the sour crude oil that lacks in tide water access, such as Western Canadian Select. अब ये sour है because it has more sulfur impurities, so that is why it is less expensive than the sweeter oil. Sweeter oil ये क्यों है? क्योंकि इसमें sulfur impurities जो है वो कम है Western Texas Intermediate में, इसलिए WTI is more expensive. Now talking about the natural gas. So natural gas are also the carbon gas mixtures, जिसमें कि प्राइमरीली हमको मीथेन मिलती है। मीथेन जो है वो प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, और बाकी इसमें अल्केन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब भी मिलता है, बट प्राइमरीली मेजरली इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है, राइट। अब अगर हम नेचुरल गैस का कंपैरिजन देख ले एलएनजी से या एलपीजी से, सो यू शुड नो कि एलपीजी में प्राइमरीली इट्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन, हेवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हमको इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो एंड एलपीजी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रिप्लेसिंग द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इसको हम रेफ्रिजरेंट्स के में यूज़ करते हैं, कुकिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है, राइट। और हम कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं? तो जब हम पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं, राइट, या फिर वेट नेचुरल गैस की रिफाइनिंग करते हैं, सो इन दैट केस हम एलपीजी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब वेट नेचुरल गैस, अभी मैंने एक टर्म मेंशन किया था, सो नेचुरल गैस को हम ड्राई गैस भी कहते हैं और वेट गैस भी कहते हैं। वेट गैस इट इज़ कंसिडर्ड जब ये एसोसिएशन पेट्रोल के साथ मिलता है तब उसको वेट गैस कहते हैं। ड्राई गैस कब कहते हैं? जब पेट्रोल, बिना पेट्रोल के खाली गैस मिलती है, तब हम उसको ड्राई गैस कहते हैं, राइट। एंड उसके अलावा जो प्राइसिंग वगैरह होती है नेचुरल गैस की, वो बेस्ड ऑन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे प्राइसिंग होती है नेचुरल गैस की। उसमें से इम्प्योरिटीज़ वगैरह हटा के उसको प्रॉपर प्रोसेस करके इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं नेचुरल गैस में, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब प्रेजेंट होता है। सो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के बाद कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे नेचुरल गैस की प्राइसिंग होती है, राइट। और एक बैरल का यूनिट जो होती है, अगर हम नेचुरल गैस की देखें तो मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से नेचुरल गैस की प्राइसिंग होती है, राइट। सो दिस एडिशनल थिंग यू कैन नो। सो एलपीजी हमने देख लिया, एलपीजी इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन हेवी हाइड्रोकार्बन्स। एलएनजी इज बेसिकली, इसमें हमारी मीथेन होती है, मीथेन के साथ साथ कुछ इथेन भी होती है। सो मीथेन एंड इथेन, फिर इसको हम कूल डाउन करते हैं और लिक्विड फॉर्म में लाते हैं ताकि इसका ईजी ट्रांसपोर्ट कर सके। सो वॉल्यूम में काफ़ी कम होती है अगर हम नेचुरल गैस से कंपेयर करें। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, अराउंड 1/600 टाइम ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स नॉर्मल कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में जो एलएनजी है दैट इज़ 1/600 टाइम ऑफ नेचुरल गैस, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम होता है। और उसके अलावा वी हैव दिस कोल्ड बेड मीथेन ऑल्सो। सो कोल्ड बेड मीथेन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसमें सल्फाइड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्वीट गैस, सल्फाइड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है तो इसलिए इसको स्वीट गैस कहते हैं, राइट। एंड इट डज नॉट हैव दीज हेवी हाइड्रोकार्बन्स लाइक प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो ये आपको तीनों में डिफरेंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। देन वी सी की नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती है? सो इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है, एंड कई बार बिना पेट्रोलियम के भी मिलती है। एंड इट कैन बी फाउंड इन द डिजॉल्व फॉर्म और एज गैस अबव द सॉइल, गैस कैप्ड अबव द सॉइल।
अब इसको हम सार गैस क्यों कहते हैं? सार गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट जो है लार्ज अमाउंट में होता है, एंड कोल बेड मीथेन जो कि हम जिसको स्वीट गैस कहते हैं उससे ये डिफरेंट इसी मायने में है कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और कोल बेड मीथेन में नहीं मिलता है, राइट। अब हम नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में, सो नेचुरल गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलता है, असम रीजन में मिलता है, राइट। गल्फ ऑफ खम्बाट कैम्बे रीजन में मिलता है, बाड़मेर रीजन ऑफ राजस्थान, दिस पर्टिकुलर रीजन यहाँ मिलता है, कड्डलोर एंड तमिलनाडु, कड्डलोर रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस रीजन में हमको नेचुरल गैस रिजर्व्स मिलते हैं। और अगर अब हम लार्जेस्ट रिजर्व्स की बात करें नेचुरल गैस में लार्जेस्ट रिजर्व्स की, सो दे आर फाउंड इन रशिया, सेकेंड नंबर पे इट्स ईरान, थर्डली इट्स कतर, एंड देन लास्टली इट्स यूएसए। सो रशिया इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, गैस रिजर्व्स में सबसे ज़्यादा रशिया है, फिर ईरान है, फिर कतर है, एंड देन यूएसए इज देयर। सो दिस यू शुड रिमेंबर। उसके बाद में अगर हम ऑयल फील्ड्स की बात करें, नेचुरल गैस फील्ड्स की बात करें, लार्जेस्ट कहाँ पे है? सो दैट बेसिकली लाइज इन रशिया ओनली, क्योंकि रशिया में लार्जेस्ट रिजर्व हैं, तो उस पर लार्जेस्ट ऑयल गैस फील्ड्स भी हमको रशिया में मिलती हैं, साइबेरियन रीजन में। साइबेरियन रीजन, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओब है, इसके बीच में यहाँ पे फील्ड्स हैं, इनका नाम है इफ़ यू कैन रिमेंबर यूरेनगॉय नेचुरल गैस फील्ड्स, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वन। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में भी अल्बर्टा रीजन, गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन, यहाँ पर हमको नेचुरल गैस मिलती है। यूरोप में बात करें तो यूरोप में नॉर्थ सी वाला जो रीजन है वहाँ पे हमको गैसेस के रिजर्व्स मिलते हैं। अफ्रीका में नाइजर डेल्टा है, जहाँ पे अभी हमने देखा था मैप में कहाँ है नाइजर डेल्टा, सो वहाँ रिजर्व्स मिलते हैं। एंड एशिया की बात करें सो मलेशियन रीजन, राइट, सुमात्रन आइलैंड्स, वहाँ पर हमको मलेशियन सुमात्रन रीजन, यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में यूएसए, ऑयल में भी और गैस में भी, बोथ इन गैस एंड ऑयल। सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रशिया है, थर्ड पे ईरान, कनाडा, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो दिस यू शुड नो। बाकी हम ब्रॉडली अगर यूजेस की बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के यूजेस फर्टिलाइजर्स में होते हैं, राइट। पावर, अगर हमें पावर प्रोडक्शन उसमें हम यूज़ करते हैं। सो दिस ऑल बेसिक आइडियाज़ यू शुड हैव कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो एनर्जी रिसोर्स है तो ऑब्वियसली पावर जनरेट तो करेंगे। देन एक्सपोर्ट्स, leading nations which are exporting, Russia is one of the leading exporters of natural gas, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट रिजर्व हमको रशिया में मिलते हैं। देन कतर एंड नॉर्वे, रशिया के पास जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल डेवलप्ड रशिया में, एंड ये फार ईस्ट रीजन में गैस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, चाइना को गैस एक्सपोर्ट करता है, बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग nations in terms of export, Russia. So now talking about the gas pricing in India. Gas pricing in India एक major issue है, right? Major issue क्यों है? क्योंकि there are multiple pricing regimes. Multiple pricing regimes है और उनको broadly हमने 3 कैटेगरी में रखा है। एक है administered pricing mechanism, right? इसमें क्या होता है, और दूसरा है non APM, और तीसरा है LNG. सो APM में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेड का क्या मतलब है कि इट इज़ नॉट फ्री, it is not market based, prices are regulated, right? There would be price regulation, and who would be regulating the prices? It's the government that would be regulating the prices of the natural gas, whatever is produced. So in that case there are certain sectors which are reserved, like power sector, then fertilizer sector, जहाँ पे prices जो होंगी that would be dictated by the government. Then there are non APM gas मार्केट, यहाँ पे प्राइसेस जो होंगी दैट वुड बी मार्केट लिंक प्राइसेस, एंड देन LNG फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस. सो इफ यू इम्पोर्ट LNG then in that case also the prices would be market linked. Besides that there is also a differential pricing mechanism for different sectors also. So we saw कि power sector के लिए, fertilizer sector के लिए there are different pricing mechanisms. Then there are also different regions. So अगर हम बात करें region, तो north eastern region that gets subsidized gas. So that is also the differential pricing mechanism. And if we consider this, जो major share of gas supplies हैं इंडिया में
that is not market driven and they are controlled, the prices are being administered by the government. और ये एक बहुत major drawback है कि prices when they are governed by the government, so companies if they come, they explore, they produce, then in that case they are not free to charge whatever they want to. So in that case यहाँ पर investments जो है वो इस particular area में they are very low or even negligible. So and that is an important drawback. India wants to be self-sufficient in terms of energy sector. We want to reduce our current account deficit. Then such kind of policies, they are hampering the investments, the growth of the sector. So the government is also coming up with several reforms. There are several committees like Rangarajan committee. So this committee basically suggested that government should not now administer the prices of the natural gas and let it be market driven. And also profit sharing model पे नहीं, there should be revenue sharing model between government and the contractor. उसके basis पे revenues जो है वो share किए जाएं. So there are certain recommendations. एक रिकमेंडेशन ये भी है कि गैस पूलिंग करी जाए, सो दैट अलग अलग सेक्टर्स के लिए गैस पूलिंग हम करते हैं, देन वी कैन बी डेडिकेटली सप्लाइंग गैसेस टू द पर्टिकुलर सेक्टर. सो इस केस में क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं होगा. सो देर आर सेवरल रिकमेंडेशंस. और अगर रंगाराजन कमेटी की बात माने, सो इन दैट केस नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं दैट वुड बी इंक्रीजिंग इन द कंट्री. सो ये गैस प्राइसिंग से रिलेटेड हो गया. देन नाउ टॉकिंग अबाउट द अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज. अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें तो वाई दे आर अनकन्वेंशनल. सबसे पहले तो अनकन्वेंशनल इसलिए क्योंकि या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको हम इजीली एक्सप्लोर कर सके. सो दैट इज वन थिंग दैट मेक्स इट अनकन्वेंशनल की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हमको चाहिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट या एक्सप्लॉइट करने के लिए, दैट दे आर नॉट ईजिली एक्सट्रैक्टेबल. इजीली एक्सट्रैक्टेबल नहीं होते हैं. दैट इज वाई वी कॉल देम अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज. या तो लिमिटेड अमाउंट में होंगे, कम अमाउंट में होंगे, उतना फीजिबल नहीं होगा उनको एक्सट्रैक्ट करना. सो वन इज द कोल बेड, मीथेन, शेल गैस, टाइट गैस. These are certain unconventional resources. Now you can see this is bituminous, absorbed some sort of rock which is, and this is shale oil. These are some of the unconventional resources. Now coal bed methane, ये coal bed methane coal seams में हमें मिलती है. कोल सीम्स में मिलती है जहाँ पे कोयला मिलता है, राइट, उससे वहाँ पर मीथेन गैस भी ट्रैप हो जाती है. सो मीथेन गैस हमें कई डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पे देखने को मिलती है. डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है या पोर्स में सीधे सीधे प्रेजेंट होती है कोल वगैरह में, कोल सीम्स में. देन शेल गैस बेसिकली शेल एक सेडिमेंट्री रॉक होता है. सो शेल बेसिकली शेल फॉर्मेशंस में जो गैस ट्रैप्ड होती है उसको हम शेल गैस कहते हैं. एंड टाइट गैस इज ऑल्सो सिमिलर टू द शेल गैस, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि टाइट गैस दैट इज ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे लाइमस्टोन हो गया या बाकी और कोई सेडिमेंट्री रॉक हो गया. वेयर एज शेल गैस जो है वो शेल फॉर्मेशन, शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक ही है, उसमें मिलती है. Then now talking about particularly coal bed methane. So coal bed methane, it's a form of natural gas which is extracted from coal bed, right? ये हमें कहाँ मिल सकती है? It can be found in the pores of the coal. Then it can also be present in the joints and fractures of coal seams. Right? और अगर हम इंडिया में बात करें, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इट्स अ स्वीट गैस बिकॉज इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं प्रेजेंट होता. इंडिया में इसके रिजर्व्स की बात करें सो झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, दीज आर द रीजन्स. यू नो कि झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, दीज आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ रॉक्स, राइट, और गोंडवाना रॉक्स, नॉट धारवाड़, गोंडवाना रॉक्स है यहाँ पे, राइट. एंड गोंडवाना रिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स हमको मिलते हैं. एंड एज वी हैव कोल डिपॉजिट्स हियर, सो यहाँ पर हमको कोल बेड मीथेन इजीली मिल सकती है. गुजरात में भी वी हैव लिग्नाइट के रिजर्व्स, सो गुजरात इज ऑल्सो अ रीजन जहाँ पे कोल बेड मीथेन हमको मिलती है, राइट. एंड कैसे हम कोल बेड मीथेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं? सो बेसिकली हम वेल्स को डिग करते हैं कोल सीम्स के अंडर, कोल सीम्स में, एंड उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसको जो है पंप करते हैं, सो दैट वाटर जो है दैट ऑक्यूपाइज पोर्स, जो भी पोर्स हैं, और प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है, एंड एज अ रिजल्ट गैस जो है वो पुश आउट हो जाए. सो इस तरीके से हम कोल बेड मीथेन को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं.
अब कोल बेड मीथेन के चैलेंजेस क्या आते हैं, एक्सप्लोरेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं? एक्सप्लोरेशन में जो चैलेंजेस आते हैं वो ये है कि लार्जली इसमें पब्लिक कंपनीज दे आर डूइंग द एक्सप्लोरेशन, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, एंड इनमें प्रॉब्लम्स क्या है कि एक तो फाइनेंसेस की कमी है, राइट, उसके बाद करप्शन भी हो जाता है, इनएफिशिएंसी है, काम सही से नहीं होता, राइट, देन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट नहीं है, सो देयर इन दैट केस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद सेवरल माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एज इन की जो कोल का एक्सप्लोरेशन है, कोल का एक्सप्लोरेशन उसके लिए माइनिंग राइट्स देती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, राइट, उसके बाद जो कोल बेड मीथेन है उसके लिए माइनिंग लाइसेंसेस वगैरह देती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और अलग अलग दिया जाता था। सो इस केस में क्या है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। देन प्राइसेस भी इसके लो होते हैं, लो प्राइसेस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। देन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, इट नीड्स सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो कि ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि आपने कोल बेड मीथेन एक्सप्लोर किया, देन यू हाउ कैन, क्या पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है, देन दैट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाकी इंडिया में लो ग्रेड क्वालिटी का कोल है, सो पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कम है, सो दैट कैन बिकम अ चैलेंज टू द प्रोडक्शन, राइट। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस इन एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल बेड मीथेन। उसके बाद ये एक अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली देयर प्रोडक्शन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कोल माइंस, झरिया इज इन झारखंड, देन उसके बाद रानीगंज, इट्स इन वेस्ट बंगाल, एंड देन सोहागपुर इज इन एमपी। ये रीजन में कोल बेड मीथेन का भी एक्सप्लोरेशन का परमिशन वगैरह दिया गया है, सो दिस यू शुड नो। देन टॉकिंग अबाउट शेल गैस, शेल gas is also an unconventional reserve. This is found where? It is found in fine grained sedimentary rocks, right, that forms the compaction of silt and clay. So shale gas is basically form of natural gas only, which is trapped in shale formations which are themselves a sedimentary rock. So this you should know shale gas के बारे में। अब shale gas जो है इट्स अ नेचुरल गैस, बट प्रॉब्लम क्या है शेल गैस के एक्सप्लोरेशन में कि जो इन पर्टिकुलर शेल फॉर्मेशंस होते हैं इनकी जो परमेबिलिटी होती है या फिर पोरोसिटी होती है, परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी, दैट इज लेस से मॉडरेट के बीच में होती है, तो इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है दैट इज नॉट इजी, एंड इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, हायर इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि जो है हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उसके अलावा आपको मतलब दिस बेसिक आइडिया यू शुड नो। देन शेल गैस रिजर्व्स की बात करें, सो दीज आर द प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स, ये जो हमारा रीजन है, राजस्थान रीजन, बाड़मेर रीजन यहाँ पर, देन कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, दीज आर द रीजन जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स है, दामोदर बेसिन, these are the regions. Then ये येलो वाले रीजन, विंध्यान बेसिन, अपर आसाम बेसिन, these are some other regions where there are prospects कि हमें शेल गैस वगैरह मिल जाए। सो बनती कैसे शेल गैस? वही सेम फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अगर आप मान लीजिए ये एंशिएंट सी फ्लोर है, राइट, एंशिएंट सी फ्लोर, अब यहाँ पे क्या होगा, सी फ्लोर पे डिपॉजिट्स होंगे, राइट, जो भी पुराने टाइम में मरीन ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए मरीन ऑर्गेनिज्म है, सो डेड मरीन ऑर्गेनिज्म जब वो डिके हो गए लाइक एंड दे कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मड्स, सो यहाँ पे ये मान लेते हैं ऑर्गेनिक मड्स हैं विच इज मेड अप ऑफ डिकेड मरीन ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे कि रेडियोलारिया है, ग्लोबीजेरेना है, दीज आर सम ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म। तो मान लेते हैं उनके डिपॉजिट्स, यहाँ पे मड जो है ऑर्गेनिक मड्स वगैरह डिपॉजिटेड है। अब उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, एंड विद टाइम काफ़ी सारी सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो गए। सो अंडर ह्यूज टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस में क्या होगा, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मड दैट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू गैस और अदर फॉसिल फ्यूल, सो ये कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद क्या होगा, ये गैस जो है, दिस पर्टिकुलर गैस व्हेन ट्रैप्ड हियर, कभी कभी इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेडिमेंट्री बेसिन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो दे आर लाइक कि हम नेचुरल गैस के फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाकी कुछ जो है वो शेल फॉर्मेशन में ही ट्रैप रह जाते हैं, उनको हम शेल गैस कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ दे आर फॉर्म्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड में शेल गैस के रिजर्व्स, सो दीज आर द असेस्ड बेसिन,
ये पर्टिकुलर गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन, ये साउथ अमेरिका में ये रीजन है। देन नॉर्थ अफ्रीका के रीजन जो है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका में ये रीजन हो गया, राइट। देन दिस पर्टिकुलर एरिया इन यूरोप, दीज हैव द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ शेल गैस रिजर्व्स। एंड अगर हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना के पास सबसे ज़्यादा शेल गैस रिजर्व्स हैं इन द वर्ल्ड। सो दिस यू शुड नो। अब हम शेल गैस को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्टिंग इज अ मेजर चैलेंज एंड इट्स ऑल्सो वेरी मच टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव प्रोसेस। सो देयर आर टू मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग एंड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। सो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्शनल ड्रिलिंग। डायरेक्शनल ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं कि हम सीधे सीधे वर्टिकल ड्रिलिंग ना करने की बजाय, दिस इज द शेल फॉर्मेशन, यू कैन सी हियर दिस लाइट ब्राउन। सो हम इसमें सीधे सीधे बहुत वर्टिकल ड्रिलिंग ना करके, अगर हम ये आप देख सकते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं तो हम ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर पाएंगे, एरिया दैट इज कवर्ड वो ज़्यादा होगा। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, बहुत ज़्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं करेंगे। सो इस तरीके से डायरेक्शनल ड्रिलिंग करने से क्या होता है, मोर एरिया ऑफ द रिजर्वायर कैन बी एक्सेस्ड एंड लेस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सो इट इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि हम पहले तो वेल्स जो है ये वेल्स जो है इनको करते हैं, यहाँ पे डिग करते हैं। देन वेल्स के थ्रू हम यहाँ पे प्रेशराइज्ड वाटर अलॉन्ग विद सैंड, वाटर एंड सैंड, इनको प्रेशराइज करके इसमें भेजते हैं वेल्स के थ्रू। एंड यहाँ पर क्या होगा कि उसके थ्रू फिशर्स क्रिएट करे जाते हैं। ये देखिए दीज आर द फिशर्स। तो ये फिशर्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि परमेबिलिटी और पोरोसिटी ये इंड्यूस हो सके, परमेबिलिटी इनमें इंड्यूस हो सके ताकि हम गैस जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो ये एक पर्टिकुलर डेप्थ पे किया जाता है हाइड्रोलिक ड्रिलिंग। एंड आफ्टर दैट वाटर एंड सैंड के साथ प्रेशराइज वाटर जो है वो इस केस के थ्रू भेजा जाता है। एंड देन फिशर्स आर क्रिएटेड, फिशर्स क्रिएट होते हैं और सैंड साथ में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि दैट कैन कीप द पोर्स ओपन, सैंड कैन कीप द पोर्स ओपन, राइट। एंड हाई प्रेशर पंपिंग करते हैं सो दैट यहाँ पर जो भी गैस ये फिशर्स हैं ये बड़े हो जाएं और एंड देन वी कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द गैसेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड। सो ये इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ये हम करते हैं। नाउ देर आर सेवरल चैलेंजेस ऑल्सो इन्वॉल्व इन शेल गैस एक्सप्लोरेशन। नाउ यू सी कि यहाँ पर ये एक वाटर रिजर्वायर भी है, राइट, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर है। अब यहाँ पर से हम शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेल डिग कर रहे हैं। सो वेल डिग कर रहे हैं, सो देयर कैन बी केस, और फिर हम यहाँ से पानी भेज रहे हैं प्रेशराइज वाटर सैंड वैंड मिला के। सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लीकेज होगा तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, सरफेस वाटर कंटामिनेशन भी हो सकता है उसकी वजह से, राइट। देन देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ वेस्ट वाटर। अब ये जो पानी हमने इसमें भेजा तो दैट इज वेस्ट वाटर, फिर उसके ट्रीटमेंट, उसका हैंडलिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू। देन आप कई सारा फ्रेश वाटर उसको यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज, तो वो एक इशू है। देन यहाँ पर आप फ्रैक्चरिंग कर रहे हो, यू कैन सी हियर फ्रैक्चरिंग कर रहे हो, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी। तो उसकी वजह से इंड्यूस सीस्मिसिटी हो सकती है, एयर क्वालिटी इम्पैक्ट हो सकती है, राइट, और फ्रेश वाटर का कंजम्पशन एंड ऑल ये सब तो बढ़ ही जाएगा। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस। हाउएवर वी जो भी एक्सप्लोर करते हैं दीज कंपनीज, दे से दैट वेस्ट वाटर दे आर रीयूटिलाइजिंग इट बाय ट्रीटिंग इट, so that ways they are trying to overcome that particular challenge, but still जो है शेल गैस अभी भी एक चैलेंज है जो कि हम देखते हैं। उसके अलावा देर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो कि हम कोल अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कर लें। सो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। और अगर हम शेल गैस की बात करें इंडिया में तो शेल गैस रिजर्व्स हमने सारे मैप नहीं किए हैं, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सो एक्सप्लोरेशन कांट बी दैट ईजी, राइट। एंड देन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर नॉट गुड इनफ, सो दीज आर सर्टन चैलेंजेस, राइट। उसके अलावा देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, जैसे कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हम करते हैं, सो दैट कैन बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट। और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि वी कैन अचीव 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030, राइट, कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। सो कोल गैसिफिकेशन का आपको आइडिया इतना होना चाहिए कि जब हम कोल गैसिफिकेशन कोल सीम्स में डायरेक्ट करते हैं, एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे, अंडरग्राउंड ही कंट्रोल टेम्परेचर पे हम कंबशन कराते हैं,
कंट्रोल्ड कंडीशंस में ऑक्सीजन एंड CO2 वगैरह इंजेक्ट करते हैं बाय डिगिंग अ वेल इन अ कोल सीम, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं हम किसी भी कोल सीम में, और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस भेजते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंडरग्राउंड ही कंबशन होता है और हम गैस जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और गैस जो है हमें एक्सट्रैक्ट करके मिलती है, दैट इज द सिन गैस। नाउ सिन गैस में क्या कॉम्पोजिशन होता है सिन गैस का? It consists of hydrogen, it consists of carbon monoxide, some amounts of carbon dioxide and water vapor. So this is considered to be a clean fuel, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, these are the बाय प्रोडक्ट्स, राइट। और इससे हम कई सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बना सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। सो सिन गैस इज मोर बेनिफिशियल। अगर हम कोयला निकालते हैं और या फिर हम उसका अंडरग्राउंड ही कोल गैसिफिकेशन कर लेते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट सिन गैस का वो चीप होगा, राइट। इससे हम और मतलब आपका फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, यूरिया जैसे। लोकल पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि कोयला जलाएंगे तो लोकली पॉल्यूशन भी होता है, सो दैट मीन्स वो भी कम हो जाएगा। बट कोल गैसिफिकेशन के भी चैलेंजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं। इंडिया का अगर हम कोल की बात करें तो उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है, ऐश कंटेंट ज़्यादा है, सो उसकी वजह से भी कई प्लांट्स जो है वो फेल हुए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद यहाँ पर भी सीस्मिसिटी इंड्यूस हो सकती है, सब्सिडेंस हो सकता है, क्योंकि आप नीचे ही कोयला जला रहे हो, तो जहाँ पे भी कोल माइनिंग होगा उसका पूरा माइन धंस जाए, दैट कैन बी अ रीज़न। उसके बाद वाटर कंटामिनेशन भी हो सकता है। सो दीज आर सेवरल ड्रॉबैक्स कोल गैसिफिकेशन के भी, बट स्टिल गवर्नमेंट इसको इंसेंटिवाइज कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि वी वुड बी गिविंग कंसेशन, करीब 20% के आसपास कंसेशन देंगे रेवेन्यू पे अगर आप कोल गैसिफिकेशन करते हो। सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कोल गैसिफिकेशन। देन टॉकिंग अबाउट द रेयर अर्थ मिनरल्स, ये एक डिस्कशन रह गया था लास्ट क्लास में। सो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, तो रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली दोज मिनरल्स विच आर, ये नहीं है कि मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स आर ऑलवेज रेयर। रेयर अर्थ मिनरल्स आर दोज 17 एलिमेंट्स ऑफ द लैंथेनाइट सीरीज, जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो लैंथेनाइट सीरीज में जो 17 एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा येटेरियम एंड स्कैंडियम, दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट। एंड इनका मतलब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट होती हैं, राइट। एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मिनरल्स ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि इनके यूजेस जो हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, राइट। सो इफ यू सी दिस मैप, रेयर अर्थ मिनरल्स सबसे ज़्यादा अराउंड 97% के आसपास रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व चाइना में मिलते हैं, इंडिया में करीब 2% के आसपास मिलते हैं, बाकी एरियाज में इतने सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिलते हैं। सो दिस यू शुड नो। और रेयर अर्थ मिनरल्स के यूजेस काफ़ी जो है वेरीड है, एंड दे आर लाइक मिनरल्स ऑफ द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें जिरकोनियम, जिरकोनियम इज अ रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। देन उसके बाद आप बेरिलियम की बात करो, सो बेरिलियम कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर in atomic reactors. Then there are several strategic uses of rare earth minerals, like petroleum refining में हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूजेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजेस होते हैं, राइट। उसके अलावा एक मिनरल है रेयर अर्थ मिनरल है थूलियम। थूलियम को हम एक्सरे मशीन्स पे यूज़ करते हैं, सो देयर मेडिकल साइंस में भी यूज़ हो गया ना, देन ये। सो दीज आर सेवरल यूजेस ऑफ रेयर अर्थ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, environment mitigation, national defense. So these are very important resources. Then properties की बात करें, so they have unique magnetic, luminescent and electromagnetic properties, and the rare earth metal occurs naturally together in minerals. So अगर हम बात करें मोनाजाइट सैंड, so मोनाजाइट सैंड it also consists, it's like फॉस्फेटिक फॉर्म ऑफ सेवरल मिनरल्स मिलते हैं, इनमें काफ़ी रेयर अर्थ मिनरल के भी फॉस्फेट फॉर्म्स जो हैं वो हमको मोनाजाइट सैंड में मिलते हैं। सो दिस यू शुड नो। उसके अलावा कई बार यूरेनियम या अदर थोरियम, इनके रिसोर्सेज के साथ भी हमको रेयर अर्थ मिलते हैं, और रेयर अर्थ के ओर्स मिलते हैं, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड रेयर अर्थ मिनरल्स दे आर नॉट ऑलवेज रेयर। अगर हम सेरियम एक रेयर अर्थ है,
मिनरल है जो कि काफ़ी अबंडेंट है. दिस इज द 40th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. सो दिस यू शुड नो. So till now we have covered energy resources. Now non-conventional energy resources are left, so that we would be seeing in other topic, other lectures. So अभी तक के लिए इतना ही था. Thank you everyone.